Time to do something local today. अभी हम केबल कार में बैठने जा रहे हैं. This is Fisherman's Wharf. कितना beautiful है. Guys, ये बहुत ही famous जगह है. यहाँ के burgers बहुत famous है. In and out. इसके अंदर crab है. I'm most excited for today because आज मैं जा रही हूँ Alcatraz. It's a prison in the middle of the ocean. So I'm very excited. Cheers everybody! Hi everybody! I'm in San Francisco, USA. मैं पहली बार अमेरिका आई हूँ. This is my first ever trip to the US. I'm so excited and वैसे तो मैं आजकल रील्स ज़्यादा बनाती हूँ, पर तुम लोग ने बोला कि व्लॉग बनाओ और हम देखेंगे, तो अब मैं बना रही हूँ, तुम लोग देखना, ओके? बिकॉज व्लॉग बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, 10 गुना, और उसको एडिट करने में 10 गुना टाइम लगता है. So because of you all, I'm gonna vlog my San Francisco stay, and I'll tell you more about my trip. पहले मैं हूँ San Francisco में, I think 5 दिन. I'm staying at Hotel Nico, which is a 5-star hotel right at Union Square, which is the center of San Francisco. उसके बाद मैं जा रही हूँ LA, where I'm staying at the Bellagio. नहीं, sorry, वो तो वेगस है. उसके बाद मैं जा रही हूँ LA, वहाँ का स्टे होटल सब मैं भूल गई हूँ. जब मैं जाऊँगी तो बताऊँगी. So I'm going to Los Angeles after this. Then I'm going to Las Vegas to party. Then I'll go to Washington, and then I will go to New York for 12 days, which I'm most excited about because बचपन से New York के जितने भी shows देखे हैं, Hollywood जितनी भी movies देखी है, it's all about New York, New York, New York. So बचपन से मुझे हमेशा वहाँ जाना था, and I'm staying right at Times Square. So I'm very excited. This is my first vlog of the US trip. आज के vlog में हम सिर्फ San Francisco cover करेंगे. जो भी मैं आज करने वाली हूँ, I'll show it to you. And I'm most excited for today because आज मैं जा रही हूँ Alcatraz. Alcatraz it used to be a prison in the US. The saying is, if you break the law in USA, you go to the prison. But if you break the law in prison, you go to Alcatraz. मतलब जितने भी most notorious prisoners थे, उनको Alcatraz में रखते थे. It's a prison in the middle of the ocean, ताकि कोई escape ही ना कर पाए. Once you're on that fortress, you are trapped for life. So अब उन लोगों ने, it's not a prison anymore, but they have started tours for it, and it's a notorious place. It's like the unescapable prison, and also वहाँ पे बहुत सारी stories है. Apparently वहाँ से 3 prisoner भाग गए थे. So they're gonna show us all of that. So I'm very excited. मुझे इतना मजा आ रहा है ना यहाँ पे. USA is beautiful. It's so beautiful. मेरा ऐसे view है. I'm just sitting right next to the window. मैं दिखाती हूँ एक बार. That's the view. Isn't it absolutely beautiful? मैं होटल निको के 19th floor पे हूँ. And oh my god, है तो बहुत खूबसूरत. वो Macy's दिख रहा है तुम लोग को? That's apparently for shopping. If you go to San Francisco, you must go to Macy's apparently. अभी तो मुझे बहुत भूख लग रही है वैसे. Alcatraz के पहले मेरे पास थोड़ा टाइम है. मैं जाके थोड़ा कुछ खाऊंगी because फिर टूर में बिजी हो जाऊंगी. So वैसे मैं नाश्ता कभी करती नहीं हूँ. I don't know if you guys know, I don't eat breakfast. I only eat lunch and dinner. So far it's been working out for me because my body is great. Stop. खुद की तारीफ कर करके थक गई हूँ मैं. So anyway, अभी हम जाएंगे ब्रंच करने. Let's go. Now I'm at the Buena Vista Cafe. It was founded in 1952, so it's very very old और बहुत famous है. मतलब अगर आप सैन फ्रांसिस्को आते हो तो आपको यहाँ पे आना पड़ेगा. And fun fact, Irish coffee was introduced to the US through this cafe. मतलब basically यहाँ पे invent हुई है Irish coffee और USA. तो हमने सोचा इसी से start करते हैं अपना दिन. Cheers everybody. Let me taste it. Let's see. इस कॉफ़ी में अल्कोहल होता है. इंडिया में जब देते हैं तो उसमें तो इंडियनाइज वर्जन देते हैं, उसमें अल्कोहल नहीं डालते हैं. फर्स्ट टाइम मुझे ऑथेंटिक आयरिश कॉफ़ी पीने मिल रहा है. इट्स ऑनेस्टली फैबुलस. ये इंडिया में होना चाहिए. सो गुड. नाश्ता आ गया है गाइस. आई एम हैविंग क्रैब ऑमलेट. हाईली रिकमेंडेड ऑन द इंटरनेट फॉर दिस कैफे. फिर ये है सैल्मन बर्गर. इंडिया में मैंने कभी नहीं खाया है, सो आई एम वेरी एक्साइटेड. एंड ये सब ब्रेड है, ग्लूटेन वाला ब्रेड. आज वो दिन है जब हम जान जोखिम में डाल के ग्लूटेन खाएंगे, क्योंकि यहाँ पे ग्लूटेन फ्री ब्रेड नहीं है. सो दैट्स ऑल वी हैव. लेट्स गो. हर जगह की हाईली रिकमेंडेड चीज़ें खानी चाहिए. मुझे समझ नहीं आता है कि जब गूगल नहीं था तो हमारे ये जो दादा परदादा लोग जब ट्रैवल करते थे उनको पता कैसे चलता था कि कहाँ जाना है, क्या खाना है. थैंक्स फॉर अस AI just knows everything. Ooh, it has cheese, like melted cheese, Swiss cheese. इसके अंदर क्रैब है. इतना सटल फ्लेवर है, मज़ा आ गया. लेकिन हम इंडियन लोग को नमक ज़्यादा अच्छा लगता है. थोड़ा सा मैं डाल रही हूँ. इट्स नॉट वेरी हेल्दी गाइज. डोंट गेट इन्फ्लुएंस्ड.
एक चीज़ का आइडिया मैं आप लोगों को देना चाहती हूँ कि अमेरिका कितना महंगा है। मैंने एक नाश्ता किया और उसका बिल आया है $126, विच मीन्स मैंने 11,600 रुपये दिए इंडियन रुपी में फॉर ब्रेकफास्ट। मतलब इंडिया में अगर आप 5 स्टार में जाके खाएंगे तब आप इतना पे करेंगे। सो बेसिकली जस्ट गिविंग एन आइडिया कि आपका कितना कॉस्ट आएगा अगर आप यहाँ पे आएंगे। सेकेंडली टिपिंग कल्चर भी है 10%, तो स्टैंडर्ड टिपेज आपको देनी ही है। मतलब उससे कम अगर आप देंगे तो मतलब आप मुंह दिखाने लायक नहीं रह सकते। सो $126 के ऊपर मैंने और टिप भी दी 15%। तो आप समझ सकते हैं कि अराउंड 12,500-600 का मेरा आया है एक ब्रेकफास्ट यहाँ पे। बैठ गई हूँ मैं अपने बोट में। अब हम जा रहे हैं एल्केट्राज, जो मुझे दिख रहा है पीछे से। लेट मी शो यू। अभी तो बहुत छोटा सा दिख रहा है, बट देयर इट इज। आई थिंक 5 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा वहाँ पहुँचने में। कितना ब्यूटीफुल है, लुक एट द व्यू, इट्स सो फोटोजेनिक। ये है बाकी के लोग जो हम लोग के साथ टूर पे हैं। काफ़ी लोग हैं इस टूर पे, बहुत पॉपुलर डेस्टिनेशन है ये। यहाँ से एकदम अभी बाहर आ गई हूँ बोट में। क्रेजी व्यू आ रहा है, इट लुक्स ऑसम। सच में यार, दिस प्रिजन इज आउट ऑफ नोवेयर। एकदम मतलब समुद्र के बीच में आइलैंड। यहाँ पे किसी को इम्प्रिजन कर दोगे तो कैसे भागेगा। बट अपेरेंटली 3 प्रिजनर भाग गए थे। विल फाइंड आउट हाउ दे डिड दैट अभी। ओके गाइस, मैं अंदर आ गई हूँ वो एरिया में जहाँ पे सेल्स है, जहाँ पे प्रिजनर्स को रखते थे लॉक करके। बहुत ही डिप्रेसिंग वाइब है, बहुत ज़्यादा। मतलब इतनी नेगेटिविटी फील हो रही है, मुझे लग रहा है मैं घर जाके सर से नहाऊंगी टू टेक इट ऑल ऑफ। बट यहाँ पे बहुत शांति है क्योंकि सब लोग अपने ऑडियो डिवाइसेस सुन रहे हैं। मेरे हाथ में ये भी है, इसमें आप अपनी लैंग्वेज में सुन सकते हैं। हिंदी नहीं है यहाँ पे, पर इंग्लिश आई एम कंफर्टेबल इन दैट। बहुत सारी स्टोरीज है। ये जो ऑडियो गाइड है इसमें जो फॉर्मर इनमेट्स थे, जो यहाँ के एक्चुअली प्रिजनर्स थे, उनकी आवाज़ में कुछ स्टोरीज रिकॉर्डेड है। इट्स वेरी चिलिंग व्हेन दे टॉक। और जो थोड़े यहाँ पे ऑफिसर्स थे, जो गार्ड्स थे, उनकी आवाज़ में भी रिकॉर्डेड है ये ऑडियो बुक। वो अपनी स्टोरीज बता रहे हैं यहाँ की। तो मुझे यहाँ पे ज़्यादा बात नहीं करनी है क्योंकि यहाँ पे बहुत शांति है। मैं बाहर जाके बताऊँगी आगे का। अब मैं प्रिजन सेल से बाहर आ गई हूँ, अब मैं थोड़ा बहुत बात कर सकती हूँ। वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा शांति थी क्योंकि सब लोग अपने ऑडियो डिवाइसेस सुन रहे थे। यहाँ पे इतनी ठंडी और इतनी हवा रही है, मतलब ठंड से ही मर जाती है यहाँ पे। पता नहीं वो प्रिजनर्स कैसे। और अभी समर है, जब यहाँ पे विंटर होती होगी तो वहाँ पे वो ऑडियो गाइड में बोल रहे थे कि इतनी तेज़ हवा आती थी कि यू कुड एक्चुअली हियर द विंड विस्लिंग रात को, बिकॉज देयर वाज नो हीट। तो इतनी ठंड में ऑल दीज प्रिजनर्स वर हियर एंड इतनी हाई सिक्योरिटी थी। इसमें इतने लेवल्स है, ये आइलैंड है, इट्स लाइक अ माउंटेन। मैं इतने लेवल चढ़ के यहाँ पे आई हूँ कि आप अगर किसी तरह उस प्रिजन से भी निकल गए तो नीचे आते आते इतने लेवल से इतनी सिक्योरिटी आप बच नहीं सकते। इट वॉज बेसिकली अ प्रिजन जहाँ से कोई भाग नहीं सकता। बट 1962 में 3 प्रिजनर्स भाग गए थे। उन लोगों ने क्या किया था, पेपर, गम और सीमेंट यूज करके फेक हेड्स बनाए। क्योंकि ये जब सब सोते थे प्रिजनर्स, सुबह को इनका हेड काउंट होता था। गार्ड यूज्ड टू विसल एंड सारे ये बाहर आते थे, अपने सेल्स के सामने खड़े होते थे। एंड उस दिन 3 प्रिजनर्स सोते रहे। सो द गार्ड थ्रू अ पिलो एट वन ऑफ द हेड्स एंड वो हेड नीचे गिर गया। तब रियलाइज हुआ ये फेक हेड है जो पेपर से बनाया गया है। ये 3 प्रिजनर उनके बेसिन के नीचे जो वेंट थे उसको स्पून से धीरे धीरे ओवर मंथ्स उसको कुरेद के उस वेंट को बड़ा किया और उसमें से क्रॉल करके अंदर गए और ऊपर जाके पाइप्स के थ्रू निकल के दे देन मेड अ मैन मेड बोट। और ये जो पानी दिख रहा है पीछे, उसमें सेल करके भाग गए वो। अब ऐसा गार्ड्स मानते हैं कि ये पानी इतना ज्यादा ठंडा है, बर्फीला है कि देयर इज नो वे दे सर्वाइव्ड, दे मस्ट हैव डाइड इन द वाटर। बट द इनमेट्स जो बाकी प्रिजनर्स थे, दे बिलीव कि ऐसा हो ही नहीं सकता। दे डेफिनेटली सर्वाइव्ड क्योंकि उनकी बॉडी तो कहीं मिली नहीं। एंड बाद में देयर वर सम साइटिंग्स की 3 आदमी एक गाड़ी चोरी करके भाग गए थे एंड दे वर दोज 3 प्रिजनर्स। तो ऐसा माना जाता है दे एक्चुअली सर्वाइव्ड। सो 3 लोग यहाँ से एक्चुअली भाग गए थे। एंड ऑल्सो द मोस्ट डिप्रेसिंग एरिया वाज आइसोलेशन। जब आप फर्दर अंदर जाते हैं तो जो आइसोलेशन, एक चीज़ जो बहुत ही क्रीपी, मतलब बहुत ही डीह्यूमनाइजिंग थी, वो थी कि किसी भी सेल में प्राइवेसी नहीं है। आप देख रहे होगे जो जितने भी टॉयलेट्स, बेसिन, बेड्स हैं, दे ऑल फेस ईच अदर, सिर्फ रेलिंग्स है। तो कोई अगर आप वॉशरूम भी यूज कर रहे हैं, एवरीबडी कैन सी यू। इट वॉज कंप्लीट लैक ऑफ प्राइवेसी, बट दैट्स व्हाट द प्रिजन वॉज फॉर। दीज वर वेरी डेडली प्रिजनर्स। और इन प्रिजनर्स में भी जो एकदम वायलेंट डेंजरस वाले थे, उनको और एक एरिया में रखते थे। वो थोड़े और बड़े सेल्स होते थे, वहाँ पे एकदम अंधेरा होता था। जो बाकी प्रिजनर्स है वो फिर भी एक रोज बाहर आते थे खाने के लिए डाइनिंग एरिया में। लेकिन ये जो दूसरा एरिया था जिसके सेल्स थोड़े बड़े थे, उसमें सिर्फ एक हफ्ते में एक ही बार बाहर आते थे प्रिजनर्स एक्सरसाइज करने के लिए और नहाने के लिए, एक हफ्ते में एक बार। और उसमें भी 9 to 14 जो सेल्स थी जिनके ग्रीन डोर्स थे, देवर कंप्लीट आइसोलेशन। उसमें एकदम अंधेरा होता था। मतलब इंसान डिप्रेशन में इतना बोर हो जाता था कि उसके प्रिजनर की एक स्टोरी है जो ऑडियो गाइड में उसने, प्रिजनर की ही आवाज़ है ओरिजिनल, उसने बोला था कि वो
इतना अकेला था कि वो उसके कोट के बटन निकाल के फेंकता था एकदम अंधेरे में, और फिर फ्लोर पे हाथ ऐसे यूज्ड टू जस्ट स्टार्ट सर्चिंग ऑन द फ्लोर अंधेरे में कि मेरा बटन कहाँ है, और जब उसको वो बटन मिल जाता था वो फिर से फेंकता था वॉल पे ऊपर, और उसे नहीं पता था कहाँ जाके गिरा, फिर उसे ढूंढता था क्योंकि वो इतना अकेला था और वो इतना डिप्रेस्ड था, लैक ऑफ एक्टिविटी, लैक ऑफ ह्यूमन इंटरेक्शन. सो दिस वाज अ फेडरल प्रिजन, द फर्स्ट वन ऑफ इट्स काइंड, एंड माय गॉड इट वाज सो डिप्रेसिंग. कोई भी जगह जहाँ पे इतने नेगेटिव इमोशंस, इतना आइसोलेशन, इतना डिप्रेशन होता है, उसमें एक अलग ही एनर्जी होती है, अजीब सी. एंड व्हेनेवर आई गो टू दीज प्लेसेस इट्स वेरी इंट्रीगिंग, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, बट मुझे ऐसा लगता है कि दैट नेगेटिविटी स्टेज विथ यू. मैं घर जाके हेयर वॉश करूंगी. मुझे ऐसा लगता है बाल धोते ही सारी नेगेटिविटी निकल जाती है. आई एम वेरी स्पिरिचुअल दैट वे, बट व्हाट एन एक्सपीरियंस. मुझे सच में अल्काट्राज़ it was supposed to be the highlight of my US tour. I always love places like these, so I must say अगर सैन फ्रांसिस्को आओगे तो अल्काट्राज़ ज़रूर करना. इसमें मूवीज़ भी बनी है. There are movies based on the prison break. Watch that. I hope you enjoyed watching Alcatraz with me. Oh my god, jet lag is so real. Yesterday I just crashed after coming back. So basically what happened was after Alcatraz मुझे इतनी नींद आ रही थी because India और US में 12.5 घंटे का फ़र्क है. मतलब अगर वहाँ पे 10 बज रहे हैं सुबह के, तो यहाँ पे 9:30 बज रहे हैं रात के. And like I came here after Alcatraz and I was like यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे. यहाँ पे चाइना टाउन है जो बहुत फेमस है, वहाँ पे बहुत अमेजिंग चाइनीज फूड मिलता है. But I came back in my room and I just crashed with my makeup on, which is crazy. उसके बाद मैं उठी तो इतना लेट हो गया था. यहाँ पे सब कुछ बंद हो जाता है. बाय द वे इंडिया जैसी नहीं है कि रात के 12 बजे भी आप नूडल्स ऑर्डर कर रहे हो 10 मिनट में डिलीवर हो रहा है. ऐसे नहीं होता है यहाँ पे सब बंद हो जाता है. चाइना टाउन में लाइक लकीली एक मिशेलिन गाइड रेस्टोरेंट खुला हुआ था. लाइक आई वेंट वॉकिंग ऑल द वे. देयर वाज दिस रेस्टोरेंट कॉल्ड RNG Lounge व्हिच हैड बीन मिशेलिन गाइड फॉर 6 years. वहाँ पे थोड़ी सी वेटिंग थी, पर इट्स ओके. देख के अच्छा लग रहा था कि वो अच्छा रेस्टोरेंट होगा, इसलिए रात को इतनी वेटिंग है. देन आई वेंट इनसाइड. सबसे पहले तो वहाँ पे उन्होंने इतनी ठंड में अपनी चाइनीज टी सर्व कर दी. ये चाइनीज लोग इतनी चाय पीते रहते हैं. दे हैव दिस ग्रीन टी व्हाइल हैविंग फूड, जिसकी वजह से उनका डाइजेशन एकदम सुपर होता है. तो उन्होंने वो चाय सर्व की, पूरी केटली पी गई शायद मैं. आई थिंक सो आई हैड दैट टी. ठंड में गरम गरम टी पी, मज़ा आ गया. उसके बाद ज़्यादा भूख तो मुझे लगी नहीं थी, पर खाना तो था. So then I ordered some kung pao chicken which looked quite nice. It was dry पर बहुत अच्छा था. कलर तो बहुत ही अच्छा था. And then उसके साथ मैंने कुछ फ्राइड राइस ऑर्डर कर दिया. It was called some golden fried rice. But it was really nice. मैंने खाया, पूरा खत्म कर दिया. So that was my dinner. But honestly I wish मैंने Chinatown थोड़ा और explore किया होता, because it's one of the main tourist attractions. There's a Little Italy also यहाँ पे. Little Italy, Chinatown, ये सब. Little Italy शायद मैं आज जाऊँगी या कल जाऊँगी, पता नहीं. But the food was really nice yesterday. मैं और भी बहुत कुछ खाना चाहती थी, पर अब एक इंसान कितना ही खा सकता है. So that was really nice. और अब Day 2 है. Day 3 actually. First day मैंने कुछ vlog नहीं किया. And let's go and discover San Francisco a little bit more. Mwah! Time to do something local today. अभी हम केबल कार में बैठने जा रहे हैं. So this is apparently one thing you have to do if you come to San Francisco. This is going to take me around the entire city, and मैंने जो pass लिया है वो day pass है. Once I've taken this pass, I can do the buses, the cable cars, and the trains, which is one pass which I got for $15. And this is something I wanted to do because जितने भी vloggers हैं जो San Francisco आते हैं वो केबल कार में बैठते हैं. This is a very nice way to see the city. They take you to all these amazing local spots. So let's see how it goes. ये ट्रेन कितनी क्यूट है. अभी मैं ताइवान गई थी, तभी मैं उस ट्रेन में बैठी थी, राइट. ये तो उससे भी क्यूट है. वो तो बहुत छोटी थी, उसमें से 4 लोग बैठ सकते थे. यहाँ पे हम लोग को शायद थोड़ा लोकल से इंटरेक्ट करने का टाइम मिलेगा. वील सी. दिस हैज अ टर्न टेबल, इट टर्न्स हियर. टूरिस्ट इन करने के लिए मैंने कर तो लिया, पर अब इस ट्रैम में बैठ के मुझे बॉम्बे की BST बस याद आ गई. इसमें इतने लोग हैं, बढ़ते जा रहे हैं. ये देख रहे हो आप लोग कितने लोग हैं इसमें? काफ़ी है. और सामने का तो व्यू भी नहीं दिख रहा है मुझे. आई एम सपोज टू सी द सिटी. कैसे देखूँ? सबके सर और बैग मेरे सामने हैं. मुझे ना ऐसा लगता है कि जब यूट्यूबर्स व्लॉगिंग करते हैं ना तो सच पिक्चर नहीं बताते हैं. आई मीन आई वुडंट मिस दिस एक्सपीरियंस बिकॉज दिस इज़ अ वेरी सैन फ्रांसिस्को थिंग टू डू, टू राइड दैट ट्रैम. पर उनको सच सच बताना चाहिए कि अंदर बैठ के इतनी भीड़ होती है. वो लोग तो अच्छे अच्छे शॉर्ट्स लगा के बैकग्राउंड म्यूजिक लगा देते हैं, स्पा वाला. ऐसा लगता है कि बहुत मज़ा आएगा, दार्जिलिंग वाली फीलिंग आएगी. और इट्स क्वाइट क्राउडेड. पर एक अच्छी चीज़ है कि आप सारे स्पॉट्स देख लेते हैं. जैसे मैं बहुत टाइम से यहाँ पे एक फ्लैगशिप स्टोर ढूंढ रही थी विक्टोरिया सीक्रेट का, तो वो सब मुझे दिख गया कहाँ पे. इट्स वेरी क्लोज टू माई होटल, जो मुझे पता ही नहीं था. अगर मैं इस ट्रैम में बैठती ना, मुझे पता ही नहीं चलता कि वो मेरे होटल के वॉकिंग डिस्टेंस पे. सो वो तो है, यू गेट टू नो व्हाट्स वेयर व्हेन यू आर पार्ट ऑफ दिस. एंड जो भी है, आई वुड स्टिल रिकमेंड यू टू डू दिस. दिस इज वेरी SF. Departure is across the street, left side. Thank you so much. Thank you. Have a good one. You too.
We're done with our ride. This is Fisherman's Wharf. कितना beautiful है. Sky इतना blue है कि color grading की जरूरत ही नहीं है. यहाँ पे बहुत सारे restaurants, pubs हैं. So if you wanna eat something, this is the place. अगर आप सैन फ्रांसिस्को आओगे, दो जगह है, दो एरियाज है जहाँ पे होटल बुक करो. एक है यूनियन स्क्वायर जहाँ पे मेरा होटल है, होटल निको, विच इज अ वेरी गुड होटल. मैं खुद बता रही हूँ वहाँ पे रह के. एंड सेकेंड है फिशरमैन्स वॉर्फ. ये दिस एरिया इज फुल ऑफ टूरिस्ट. यहाँ पे आपको क्लब्स, शॉपिंग, दुनिया भर की चीजें मिलेंगी. इनफैक्ट मैंने तो सोचा अगर मैं नेक्स्ट टाइम सैन फ्रांसिस्को आऊंगी मैं यहाँ पे होटल बुक करूंगी क्योंकि ये ज्यादा लाइवली एरिया है, ज्यादा फन है. मतलब जितने दिन मैं यहाँ पे थी, ओ ये देखो, जितने दिन मैं यहाँ पे थी मैं यहीं पे आई हूँ एक तरीके से, बिकॉज मेरा अल्काट्राज का टूर यहाँ से था. फिर दूसरा हॉप ऑन हॉप ऑफ में भी वो लोग आपको यहाँ पे लेके आते हैं, डे 1 पे जो मैंने किया था. फिर बुएना विस्टा जो मैंने नाश्ता किया वो भी फिशरमैन्स वॉर्फ पे था. तो बेसिकली आई थिंक मैक्सिमम चीजें यहीं पे हैं. सो इफ यू वांट टू स्टे एट अ टूरिस्टी प्लेस एंड स्टफ, देन यू कैन स्टे एट फिशरमैन्स वॉर्फ. गाइस ये बहुत ही फेमस जगह है. यहाँ के बर्गर्स बहुत फेमस है. इन एंड आउट, वो टेयुंग, रिमेंबर BTS V? So in BTS V's LA vlog he had shown that he was eating In and Out का burger. I am also waiting to eat it, but मैं भी यहाँ पे नहीं खाऊंगी. वो सैंटा मोनिका में LA में खा रहा था ना, so I will also go and have it there and I'll show it to you. I'll review it. Let's see how tasty it is. अच्छा ही होगा if he's having it. ये देखो एक शॉप आ गई जिसमें सिर्फ और सिर्फ सॉक्स है, क्यूट सॉक्स. तो थोड़ा टाइम पास करते चलो. और ये क्या है? डोरिटो, M&M, ओरियो, रीसेस. सो फैंसी. कप नूडल के भी सॉक्स है. कितने सॉक्स है देखो. ऐसे कभी देखी है दुकान जिसमें सिर्फ सॉक्स हो? अच्छा ये बताओ किसने किसने मॉडर्न फैमिली देखा है? कुछ याद आया? ग्लोरिया एंड जे. यार हर शॉप में इतना जोर से म्यूजिक बज रहा है, मुझे लग रहा है मेरा पूरा व्लॉग ना कॉपीराइट में जाएगा. मोनेटाइज ही नहीं कर पाऊंगी मैं. अलग ही स्ट्रगल है. मैग्नेट्स. ओके, अब जिस पर्पस के लिए मैं आई हूँ सैन फ्रांसिस्को वो सॉल्व कर लेते हैं. Buy 3 get 1 free. कोई एक ही जगह का 4 मैग्नेट क्यों लेके जाएगा यार? वैसे मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, कैलिफोर्निया वाइब्स. एंड दूसरा ये सैन फ्रांसिस्को. आई एम टेकिंग दिस वन. क्यूट है ना? पता है सिर्फ एक मैग्नेट कितने का है? 500 रुपए का, $60 का. रोज देखना पड़ेगा उठते ही फ्रिज पे. पहले मैग्नेट देखना पड़ेगा, उसके बाद दिन चालू करूंगी एवरीडे. ये देखो कैमरास, विंटेज कैमरास, डिजिटल कैमरा. आजकल इनका बहुत फैशन है. हम लोग के बॉम्बे में वो कैमरा वाली गली है ना, क्रॉफर्ड में, तो उसकी याद आ गई. इतनी गर्मी है. थॉट आई हैव सम बियर. वैसे मैंने पाइंट मांगी थी, मैं पाइंट से ज़्यादा नहीं पी पाती. उन लोग ने पता नहीं मुझे क्या दे दिया है, बाल्टी दे दी है बियर की. अब पियेंगे, क्या करें. Cheers everybody. Cheers to good times. Cheers to your health and happiness. So good. This is Stella Artois, a German lager. इंडिया में नहीं मिलती है. जब ट्रैवल करो तो ऐसी चीज़ें ट्राई करो जो इंडिया में नहीं मिलती है, तो ही फ़ायदा है. वैसे बाय द वे यहाँ पे मैं जहाँ भी जाती हूँ मेरा ID मांगते हैं. लाइक बिफोर आई ऑर्डर अ ड्रिंक. आई एम नॉट किडिंग. यहाँ के लीगल ड्रिंकिंग एज 21 है, तो इनके हिसाब से मैं 21 साल की दिखती हूँ. फ्लैटर्ड. मैं किसी भी एंगल से 21 साल की नहीं हूँ रियल लाइफ में, बट व्हेन दे आस्क फॉर माय ID आई गेट फ्लैटर्ड. मेरा व्यू कितना अच्छा है इस कैफे से, राइट? Cheers everybody. गाइस आइसक्रीम खाने का टाइम हो गया है. Ben and Jerry's बहुत फेमस है यहाँ पे. थैंक यू. ऐसे तो मैं आइसक्रीम खाती भी नहीं हूँ बॉम्बे में. आई एम लाइक सो स्ट्रिक्ट विथ माई डाइट एंड स्टफ. पर फॉरेन आके सिर्फ अनहेल्दी चीज़ें खाने का ही मन करता है. इट्स सो गुड. यहाँ पे Ben and Jerry's क्वाइट फेमस हो गया. दिस इज चोको चिप कुकी डो फ्लेवर. कितना टेस्टी है. वैसे तो इतनी ठंडी आइसक्रीम खानी भी नहीं चाहिए, पर है ना अक्ल है ना, इसे घास खाने गई है. इतनी टेस्टी है. सो गुड. नो वर्थ इट. कल सर्दी लग भी गई तो चलेगा. Okay, I'm gonna wrap up my day at Boudin's Bakery at Fisherman's Wharf. This is very special because the sourdough made here is from the same strain of yeast that has been nurtured since 1949. Can you believe that? That is so freaking special. So sourdough fans, you must come here. And this clam chowder and the sourdough bread bowl is absolutely iconic. Like if you come to San Francisco and come to Fisherman's Wharf, you have to try this. If you don't try it, your trip's incomplete. So good. This is so good. I also ordered a grilled cheese sandwich because that's the most American thing you can do. Grilled cheese. Killer. I think it's time to end my vlog. I hope you have enjoyed my day.
in San Francisco. From here, I go to LA. So stay tuned. Bye bye. I love you all so much. Thank you for giving me so much love all the time. I really appreciate it. I do. So thank you. Loads of love. Bye.